स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है which concerns all of us, and scientists are also one community amongst us, so they also want to know about, the truth about reality, what we are, what makes us living, or is there any higher supernatural or superpower which is controlling us, or which is responsible for our life, for our death, for our all the things that happen in our life. तो ये जिज्ञासा वैज्ञानिकों को भी रहती है, और वैज्ञानिकों ने स्पिरिचुअलिटी पे बहुत काम किया है। इनफैक्ट इतना नॉलेज है स्पिरिचुअलिटी पर वैज्ञानिकों की तरफ से कि आज की टॉक मेरे ख्याल से शायद उसका एक सुई की नोक जितना वॉल्यूम भी कवर नहीं कर पाएगी। व्हाट डू साइंटिस्ट थिंक अबाउट स्पिरिचुअलिटी? So this subject is actually very complex. If you read the literature on the scientists who have attempted to understand spirituality, their views are, or their theoretical work is very, very complex, and sometimes it is even beyond the understanding of many of us. Even sometimes I do not understand them. So I will not enter into the complexity of all the work that scientists have done on spirituality. I will rather like that I should give you some idea about what is the meaning of spirituality in terms of science. Okay. See, the word spirituality is derived from spirit. Okay. In Hindi, we can call it Atma. In other languages, we call it soul or Ruh. Okay. So, ये spirit क्या है? क्या ये सचमुच है या सिर्फ एक मन का ख्याल है? तो इस पे साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि स्पिरिट एक फोर्स है, और फोर्स जो है एक ऐसी चीज होती है जिसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, मगर वो असर डालती है। सो इट इज समथिंग विच इज इनटेंजिबल. वी कांट टच इट, वी कांट सी इट, वी कांट play with it, we can't keep it on our hand, but it affects us. It definitely affects us. One example is, which all of us know, is gravity. Now, gravity is a force. Gravitational force is an attractive force, and we see it every day. If we lose, if we hold something loose, it will fall. Okay. So why does it fall? And it always falls below. आपने कभी भी किसी चीज को ऊपर गिरते हुए नहीं देखा होगा, उड़ते हुए जरूर देखा होगा, मगर गिरते हुए नहीं। कोई भी ऊपर की तरफ गिरता नहीं है, हर चीज नीचे गिरती है। तो न्यूटन ने इस फोर्स का जो है एक बहुत सिस्टमैटिक साइंटिफिक वे में, मैथमेटिकल वे में इसका मूल्यांकन किया। He theorized the force of gravity and he gave the laws of gravitation, and we know that gravity is there, but gravity as a force, we can't see it, nobody can touch it. So there is a force which takes all the objects when left alone down towards the earth or towards the center of the earth because of the gravitational force. So this force is there, but we can't see it, we can't touch it, but we can experience it. Same way, in science, spirit is a force. We can't see it, we can't touch it. This is not tangible, but we can feel it. How do we feel it? Because today I'm living. Okay. Someday, many years ago, my father passed away. He was not living after he left something from his body. Okay. And the same body which was living before the death and after the death, body was same, but life was missing. So scientists are definitely
क्यूरियस, दे आर इंट्रीग्ड, वो इस चीज से अचंभे में है कि क्या ऐसा हो जाता है जिससे कि एक शरीर जो वैसे का वैसे ही रहता है पर वो मृत हो जाता है। तो उसमें हम कहते हैं कि अब इसकी आत्मा या स्पिरिट निकल गई। तो वो साइंटिफिकली वो स्पिरिट क्या है? वो स्पिरिट अकॉर्डिंग टू साइंस इज ए फोर्स, like force of gravity, like nuclear forces which are inside a nucleus, or like electromagnetic forces. There are variety of forces in nature, and spirit is only one of the force. You can't see it, you can't touch it, but it affects us. So what way the force of living, which we call as spirit, affects us? It gives us consciousness. See, we living being are having consciousness in us. हम में संवेदना है। अगर हमको कोई टच करे हमको महसूस होता है, कोई अगर हमको गर्म चीज लगाए हमको गर्म महसूस होता है, क्योंकि हम में संवेदना है। We have consciousness in us. So जिसको हम हिंदी में आत्मा बोलते हैं, उसको साइंस में एक फोर्स है which we call as spirit, and that spirit gives us consciousness, and that consciousness make us living being. If that consciousness were not there, this body will be like some like a wood, or like anything which is inanimate. अजीब चीजें, हमारे चारों तरफ काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें जीवन नहीं है, उनमें कॉन्शियसनेस नहीं है। तो उनमें स्पिरिट का जो फोर्स है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ साइंस, दैट फोर्स ऑफ लाइफ इज मिसिंग। Therefore, consciousness is missing. Since there is no consciousness, there is no life in that. And from this body, when that force of living or the spirit leaves, the consciousness will be finished and this body will be dead. So this is how scientists think about spirit. It's a force. Now in science, force actually does work. For example, in a gravitational force, if I leave something, that thing will fall. If I, for example, you might have seen the water falling from the dam, it falls under the gravity. गुरुत्वाकर्षण का जो शक्ति है, फोर्स है, उसके नीचे गिर रहा है वो पानी एक बांध से। और जब वो पानी नीचे गिरता है तो वो एक टरबाइन को चला के बिजली पैदा कर सकता है। तो फोर्स से we can do work, and work is energy in science. Okay, so force is spirit, force हमारी आत्मा है, and that gives energy to our body through consciousness, चेतना और संवेदना के थ्रू, एंड हमारी बॉडी काम करती है। और जिस दिन ये स्पिरिट का कनेक्शन, नाउ देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन कॉन्शियसनेस, जो कि हमारे माइंड का हिस्सा है। कॉन्शियसनेस इज ऑफ कोर्स ऑल ओवर इन द नर्वस सिस्टम। आवर नर्वस सिस्टम recognizes things through consciousness, and it is spread all over the body, but the center of that and the central processing unit of that is our brain, and we have the mind because of that consciousness. So we have a force of living which we call as spirit. Consciousness is the connection between that force and my body, and through my mind I do all the activities of a living being. So this is how scientists think about the spirit. Now what is spiritual? Spiritual is if my life is aligned to this concept of spirit. See, हम इस कंसेप्ट को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं ये जीवन तो जो है ईश्वर की देन है, गॉड की देन है, अल्लाह की देन है। डिफरेंट रिलीजियंस हैव डिफरेंट नेम्स, ओके, and in science spirituality we call it the force, okay, force of life or the spirit, force of spirit, okay, वो हमें जीवन देता है।
बट हम उसको डे टू डे कार्यकलापों में उस चीज का बोध हमें नहीं रहता है, क्योंकि हम इतने व्यस्त हैं, इतनी सारी चीजें हैं, परिवार है, ऑफिस है, दुनिया भर के एग्जाम्स हैं, फिर कंपटीशन है, फिर दोस्तों के साथ मजे भी मारने हैं, सिनेमा भी देखना है। इतनी सारी चीजें जहां हों, तो ये चीज जो हमारे जीवन में हर समय रहती है, स्पिरिट या फोर्स ऑफ लाइफ, उसको हम भूल जाते हैं और हम अपना जीवन ऐसे बिताने लगते हैं एज इफ इट इज नॉट देयर, एंड दैट लाइफ इज नॉट ए स्पिरिचुअल लाइफ, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज वर्ल्डली लाइफ, और सांसारिक जीवन। हम जब अपने अध्यात्म को भूल जाते हैं तो हमारा जीवन सांसारिक हो जाता है, और संसार आपको मालूम है, खुशियों के साथ दुखों का भी घर है, और कई बार दुख इतने ज्यादा हो जाते हैं कि हमारी खुशियां लुप्त हो जाती हैं। तो हम अपने जीवन में इतने सारे दुखों को जब महसूस करते हैं, तब हमें लगता है समथिंग इज नॉट राइट, एंड देन वी लुक फॉर द सॉल्यूशंस, एंड वन सॉल्यूशन कम्स फ्रॉम spirituality. If my life is aligned, okay, to the spirit, to the force, okay, then my life is a spiritual life. Now, different religions, all religions, they have a very good philosophy. All religions. If you study any religion and its philosophy, you will find they are all seeking for one truth. They are all talking of one truth. And in science also, we have a concept, okay? And this concept is called oneness of wholeness. अब हम साइंस स्पिरिचुअलिटी का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, अब हम थोड़ा उसको समझने का प्रयास करते हैं। ओके, साइंस में हमने कहा कि जो स्पिरिट है वो फोर्स है, ओके, और वो कॉन्शियसनेस कनेक्शन है बिटवीन माय माइंड एंड दैट स्पिरिट, आत्मा और जो मेरा मन है उसके बीच का कनेक्शन है कॉन्शियसनेस, और वो कॉन्शियसनेस माइंड को, पूरे बॉडी को चलाता है। और हमने जिस स्पिरिट की बात की, वैज्ञानिकों ने थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस, थ्योरेटिकल मॉडलिंग, थ्योरेटिकल थिंकिंग के थ्रू ये पाया है कि ये फोर्स सिर्फ लिमिटेड टू मी ऐसा नहीं है, ये आत्मा सिर्फ मैं हूं ऐसा नहीं है, ये फोर्स यूनिवर्सल है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, let us look at the universe, let us not look at ourselves. And universe, you know the size, trillions and trillions of years light can pass. You know the speed of light, okay, how fast it goes. Even if it travels for trillions and trillions of years, still there is universe, there is something there. And this universe consists of so many galaxies. You know, the Milky Way, the galaxy in which our planet, our solar system is a part, is called Milky Way. Okay, there are trillions of galaxies like that. Okay, and look at the size. अगर आप जयपुर का तो आकाश बहुत अच्छा है, मुंबई का आकाश बहुत गंदा है, यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, मगर जयपुर में भी इतना अच्छा स्काई नहीं दिखता है जितना हिमालयाज में दिखता है। अगर आप कभी हिमालयाज में जाएं और रात को देखें, you can see, you can have a feel, यूनिवर्स, ब्रह्मांड कितना बड़ा है, उसमें ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, और हर गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम्स हैं, और हर सोलर सिस्टम में स्टार है, उसके अराउंड प्लैनेट है। ऐसे हमारा भी एक सोलर सिस्टम है, हमारे स्टार को हम सूर्य बोलते हैं, सन, एंड उसका एक प्लैनेट है हमारी भूमि माता, धरती, अर्थ, ओके, और हम उसमें कितने छोटे से प्राणी हैं। तो अगर हम अपना साइज ब्रह्मांड में देखें, क्या निकलेगा, मतलब खाक की खाक की खाक की खाक भी नहीं निकलेगी शायद,
will be the dust particle of dust particle of dust particle of dust particle. So small. We are practically nothing in this universe. And according to scientists, this force of life or force of spirit is not only attached to me or you or only living beings. This force is attached to the entire universe. This theoretically scientists have shown. Who are these scientists? One of them I can say is David Bohm, for example. He was a quantum physicist. He did his PhD with Oppenheimer. Oppenheimer was the father of a nuclear bomb in USA. And David Bohm did theoretical work in quantum mechanics. And he has conceptualized what he calls as infinite potential. अब उसकी अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी में जाएंगे तो शायद समझना मुश्किल होगा, बट बेसिकली व्हाट ही वांट्स टू से इज दैट ये जो फोर्स है ये पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है. रिलीजियंस उसी चीज को गॉड, ईश्वर, अल्लाह बोलते हैं. साइंस में हम उसको एक यूनिवर्सल फोर्स बोलते हैं और उसका फॉर्मुलेशन है, सेम चीज है, ओके. बट इसमें हमारे पास अब एक साइंटिफिक विचारधारा है. इनफैक्ट वन डे इफ वी हैव टू प्रूव दैट रिलीजियस फिलॉसफी इज करेक्ट, it will be done by science, because science is objective. It is based on, either theory or formula which have been tested or which have been, seen through experiments, and we give proof of that. Okay. So किसी दिन अगर ईश्वर के होने का प्रूफ मिलेगा तो वो साइंस ही देगी. आपने शायद कुछ साल पहले सुना हो कि सर्न में एक पार्टिकल डिटेक्ट हुआ है जिसका नाम साइंटिस्ट्स ने गॉड पार्टिकल रखा. साइंटिस्ट्स जो है बहुत रिलीजियस और बहुत स्पिरिचुअल होते हैं. उनको पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति और उसका हमारे से क्या संबंध है, ये सब्जेक्ट उनको बहुत प्रिय है और वो इस सब्जेक्ट पे रिसर्च भी करते हैं. एंड उन्होंने थ्योरेटिकली ये बताया है कि ये जो फोर्स ऑफ स्पिरिट है जो हमें चला रही है और जो सिर्फ जीवित प्राणियों को नहीं बल्कि जो अजीब चीजें हैं जिनमें प्राण नहीं है, फॉर एग्जांपल मेज, कुर्सी, इवन लैपटॉप में भी प्राण नहीं है. ओके, मूवमेंट्स हैं डिफरेंट प्रकार के, मगर इसमें प्राण नहीं है, ये प्राण विहीन है. इन सब को चलाने के लिए एक सिंगल फोर्स है जिसको वो इनफाइनाइट पोटेंशियल के नाम से बुलाते हैं साइंस में, और उसकी थ्योरी अभी भी चल रही है. ये वर्क पूरा नहीं हुआ है. आज भी ये साइंस में एक रिसर्च का विषय है कि इस फोर्स को हम डिटेल में समझें और उस फोर्स के सीक्रेट्स को, उनके रहस्यों को, उनको हम ओपन करें. ओके, तो ये साइंटिस्ट का एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. और उन्होंने ये बताया है कि ये जो इनफाइनाइट पोटेंशियल है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, ये फोर्स ब्रह्मांड की सभी गतिविधियों को चलाता है, जिसमें गैलेक्सीज हैं, सोलर सिस्टम्स हैं, नेबुलाज हैं और कई स्टार्स बन रहे हैं, कई स्टार्स का अंत हो रहा है, ब्लैक होल्स हैं. आपने सुना होगा इस साल फिजिक्स का नोबेल प्राइज जो है वो ब्लैक होल्स को मिला और इसमें भारतीय वैज्ञानिकों का काफी योगदान रहा है. और ये सारी गतिविधियां एक सिंगल फोर्स है जो चला रही है और वही गतिविधियां धरती की जो है उनको भी चला रही है और हमें भी चला रही है. तो दिस सिंगल फोर्स इन साइंस इज वी कैन कॉल एज इनफाइनाइट पोटेंशियल इन ए वे, इन ए सॉर्ट. इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में हम अभी नहीं जाएंगे, नहीं तो ये सब्जेक्ट समझ से बाहर होने लगेगा. बट इनफाइनाइट पोटेंशियल इन ए वे इट एसेंशियली मीन्स दैट देयर इज वननेस इन होलनेस. सो अगर हम कहें भाई जो साइंस स्पिरिचुअलिटी है उसका सिद्धांत क्या है, उसका पहला प्रिंसिपल क्या है,
उसका पहला प्रिंसिपल है वननेस इन होलनेस। व्हाट इज होलनेस? सारी चीजें, मैं दुखी होता हूं, मैं खुश होता हूं, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, आपके साथ मैं जुड़ना चाहता हूं, आप मेरे साथ डिस्कशन करना चाहते हैं, और करोड़ों करोड़ों बिलियंस ऑफ पीपल आर देयर, बिलियंस ऑफ मे बी ट्रिलियंस ऑफ स्पीशीज आर देयर। ओके, कितने सारे प्लांट्स हैं, तरह तरह के मौसम बदलते हैं, बड़े बड़े समुद्र हैं धरती पे ही, ब्रह्मांड की तो बात ही छोड़ दें। ओके, तो इन सब को चलाने के लिए अगर एक सिंगल फोर्स है, विच वी मे कॉल एज द फोर्स ऑफ स्पिरिट, वो फोर्स हम सब से कनेक्टेड है। और ये सारी फोर्स जो है वो इट इज लाइक वननेस ऑफ होलनेस। तमाम चीजों को जो हमारे संसार में है, जो हमारे ब्रह्मांड में है, जो हमारे घर में है, जो हमारे अंदर है, इस सब को हम कहते हैं होलनेस। देयर इज वननेस ऑफ होलनेस। इन सभी चीजों में एक चीज समाई है, विच इज दैट फोर्स। ओके, एंड फोर्स is connected with energy. In fact, there is a formula. Force can do work. For example, if you apply force on the piston of an engine in a, for example, a steam engine can move, it can do work. So force can make us do work. This is scientific, and there is a correlation, there are formulas. तो इस formulas को हम जो है न्यूटोनियन मैकेनिक्स से समझते हैं। न्यूटन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने जो हमारे आसपास की चीजें हैं, हमारे साइज की गाड़ी है, कार है, एरोप्लेन है, उसका मैकेनिक्स दिया, जिसको हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स बोलते हैं। जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे ब्रह्मांड में बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े ब्लैक होल्स, नेबुलाज, ओके, उनका जो मैकेनिक्स है वो आइंस्टाइन ने दी, और उसको हम जो है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स बोलते हैं। तो आइंस्टाइन की रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए है, न्यूटन की क्लासिकल मैकेनिक्स जो धरती के छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए है। मगर जब हम बहुत छोटे छोटे और भी छोटे परमाणुओं की तरफ जाने लगते हैं तो ये दोनों मैकेनिक्स फेल हो जाती है, और उसके लिए जो मैकेनिक्स है उसको हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। और क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स जो है, इसकी शुरुआत जो है पिछली सदी में हुई थी, ओके, 20वीं सदी के शुरुआत में। और इसमें जो है साइंटिस्ट थे, श्रोडिंगर थे, हाइजेनबर्ग, डी ब्रोगली और डेविड बोम, जिनकी मैंने बात की। डेविड बोम बाद में जो है स्पिरिचुअलिटी और कॉन्शियसनेस पे थ्योरेटिकल वर्क करने लगे। तो इन लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत की, और अभी तक फिजिक्स में ये एक बहुत गंभीर समस्या है कि ये तीनों थ्योरीज आपस में मैच नहीं करती हैं, क्योंकि हम साइंटिस्ट लोग बिलीव नहीं करते हैं कि किसी ने बोला और हमने मान लिया, ऐसे नहीं। हमें थ्योरेटिकल प्रूफ चाहिए, हमें साइंटिफिक प्रूफ चाहिए, और प्रूफ के हिसाब से ये तीनों थ्योरीज अभी भी मैच नहीं करती। और बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जो तीनों थ्योरीज को मैच कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं, नई थ्योरीज डेवलप कर रहे हैं। तो शायद एक दिन हम ये भी पता कर पाएंगे कि हम जिस इनफाइनाइट पोटेंशियल या हम जो फोर्स ऑफ स्पिरिट की बात कर रहे हैं उसका हम आपको प्रमाण दे पाएंगे। तो ये साइंटिस्ट का प्रयास है, मगर अभी तक ये पूर्ण नहीं हुआ है। और अभी तक जो पूर्ण हुआ है उसमें एक चीज क्लियर हुई है कि देयर इज वननेस ऑफ होलनेस। ब्रह्मांड की, धरती की, हमारे जीवन की सभी चीजों का ओरिजिन एक है, सिंगल है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे घर में एक अलमारी है, एक मेज है, एक कुर्सी है। तो एक सांसारिक व्यक्ति इसको कहेगा, भाई ये अलमारी है, बड़ी महंगी है, मेज बड़ी है, कुर्सी और भी छोटी है। तो उसका अटैचमेंट जो है इन चीजों से
डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट, डिपेंडिंग ऑन इट्स वैल्यू, अलग अलग होने लगता है ना। कोई महंगी चीज है तो हम ज्यादा अटैच हो जाते हैं, मगर एक जो ज्ञानी है उसको मालूम है कि अलमारी में भी लकड़ी है, मेज में भी लकड़ी है, कुर्सी में भी लकड़ी है, तो वो इन तीनों को अलग अलग नहीं देखता है। वो कहता है भाई ये तो लकड़ी है, ओके। अब जब वो इसको लकड़ी की तरह देखने लगता है तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। तो अब देखिए, देखने के तरीके और आपकी साइकोलॉजी में एक संबंध है। तो हम मनुष्य आपस में एक दूसरे को जब अलग अलग देखते हैं तो इसको आज हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, मगर सत्य क्या है, इसकी हम रियलिटी जाने। सत्य ये है कि मैं डिफरेंट अंगों से बना हूं। अगर आप मेरा कंपोजिशन देखें तो उसमें आंख, नाक, कान, मुंह और सारे विभिन्न प्रकार के अंग, रेस्ट ऑफ इट हैं। मगर वो अंग जो है टिश्यूज से बने हैं। टिश्यूज किससे बने हैं? मॉलिक्यूल से बने हैं। मॉलिक्यूल्स किससे बने हैं? एटम से बने हैं। एटम किससे बने हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बने हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किससे बने हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल किससे बने हैं? एक एनर्जी से बने हैं। सेम विश्लेषण या दूसरे आप जिनको आप जानते हैं उन पे लगाएं, उनका भी यही सत्य है। उनके भी जो बॉडी है वो इवेंचुअली प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से ही बनी है। मैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बना हूं, आप प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बने हैं, तो हम अलग कैसे हुए? हम तो एक विशाल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का सागर है, उसके कुछ गुच्छे हैं हम ना। वी आर लम्प्स ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स इन द ओशन ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स इन आवर वर्ल्ड। तो पहला कंसेप्ट ये है कि मैं और आप अलग नहीं हैं, फिजिकली भी। अब हम इसको आत्मा की दृष्टि से देखते हैं। आप कहेंगे भाई मेरा माइंड, आपका माइंड अलग है। मेरा माइंड जो सोचता है, आपका माइंड वो सोचता है, अलग है। तो हम एक कैसे हुए? देखिए, माइंड जो है वो जब कॉन्शियसनेस मेरे ब्रेन से अटैच हुई, उससे बना है। मेरा माइंड जो है मेरी ब्रेन की कॉन्शियसनेस से बना है। उसमें विभिन्न प्रकार के अनुभव, विभिन्न प्रकार की एजुकेशन, ओके, वो सब है। मगर उस कॉन्शियसनेस को चला कौन रहा है? वो तो वही फोर्स चला रही है ना, फोर्स ऑफ स्पिरिट। सेम फोर्स आपके माइंड को चला रही है, सेम फोर्स मेरे माइंड को चला रही है, सेम फोर्स सबके माइंड को चला रही है। फिर प्रश्न उठता है, सबका माइंड अलग अलग क्यों सोचता है? देखिए, माइंड जो है इट इज connected to that infinite force, the force of spirit, through consciousness. And consciousness plays through material. Brain is a material. It is full of nervous system, it is full of synapses. Okay, साइंस के जो विद्यार्थी हैं वो इससे परिचित हैं, ओके, कि साइनेप्स जो है कैसे फंक्शन करता है। तो हम लोगों की विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न जगहों पे जो है उत्पत्ति हुई, विभिन्न परिवारों में उन्होंने हमें विभिन्न प्रकार की एजुकेशन दी, विभिन्न प्रकार के हमें जो है एक्सपीरियंसेस हुए, जबकि हमको चलाने वाली फोर्स तो सेम है, मगर इन विभिन्नताओं के कारण हमारा माइंड विभिन्न हो गया। ओके, इट इज लाइक दिस कि आप सागर में जाइए, सारे प्राणी पानी से पैदा हुए हैं, ओके। या फर्नीचर की बात करें तो अलमारी, मेज और कुर्सी, तीनों अलग अलग चीजें हैं, मगर बनी तो सेम लकड़ी से है ना। सेम वे हमारा माइंड अलग अलग है, सोचता अलग अलग है, मगर जो उसके पीछे सटल फोर्स है, जिसको हम आत्मा, रूह, सोल कहते हैं, उसका कनेक्शन तो एक ही फोर्स से है ना, जिसको हम परमात्मा कह सकते हैं, गॉड कह सकते हैं, अल्लाह कह सकते हैं। आप जो कहना चाहें, आपको स्वतंत्रता है, कुछ भी नाम दीजिए। हैं, खीर को अगर आप हीर बोलेंगे तो वो हीर थोड़ी बंद, वो भी खीर ही रहेगी किसी के लिए। तो शब्दों से नहीं होता है,
भाषा सत्य नहीं है, सत्य जो है वो भाषा के आगे है। ट्रुथ इज बियॉन्ड लैंग्वेज, लैंग्वेजेस कैन डिफर, ओके, बट ट्रुथ इज बियॉन्ड दैट, ओके। सो हम जिस फोर्स से अपने माइंड्स को चला रहे हैं वो कॉमन फोर्स है, सिंगल फोर्स है। तो हम सब एक हैं। हमारा जो मटेरियल कंपोजिशन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या सब एटॉमिक पार्टिकल, सबके लिए वही है। हमारा जो माइंड चलाने वाला फोर्स है वो सबके लिए सेम है। तो मैं आपसे अलग कैसे हो गया? ये थोड़ा सा सोचिए। अगर आपने ये सोच लिया तो आप यूं समझिए कि आपने स्पिरिचुअलिटी का फर्स्ट प्रिंसिपल जो है उसको ग्रहण कर लिया, आप उसके मास्टर हो गए। हाँ? तो सबसे पहली चीज यही है कि वननेस ऑफ होलनेस, हर चीज एक है। तो ये ट्रुथ साइंस भी जो है एस्टेब्लिश कर रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, लेट मी टेल यू द ट्रुथ, ओके, बट उसकी बिकॉज इट्स वेरी टफ, ये इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट फोर्स, इट इज सो डिफिकल्ट दैट मोस्ट ब्रिलियंट माइंड्स ऑफ आवर वर्ल्ड आर वर्किंग फॉर इट, और उनको भी अभी रहस्य नहीं मिल रहा है। थ्योरेटिकली कुछ प्रूफ्स मिले हैं मगर एक साइंटिफिक प्रूफ अभी भी बाकी है। But that thing is there, we can experience it, okay, because this body when it dies, something goes out of this body which we call as spirit, and that spirit is part of a huge spirit which we can call as grand spirit, or atma ka paramatma, spirit ka grand spirit, okay. So that connection science is establishing. So there is oneness in wholeness. And so thank you very much. Now over to Ankita ji. Yes, sir. Am I audible? Yes, Yes, sir. very So much. it was a very enlightening session, sir. So thank you, sir, for motivating us, for guiding